देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत और कहते हैं कि भारत खेल के क्षेत्र में एक बहुप्रतिभाशाली देश है। खिलाड़ियों की प्रतिभा को नए मुकाम तक पहुंचाने और उन्हें खेलों में आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ने के लिए सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम को लॉन्च किया था। इस महत्वपूर्ण कदम से ओलंपिक में भी भारत की रैंकिंग सुधारने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और सुविधाओं की जो कमी है उसको पूरा करना है। हाल ही में खेल मंत्रालय ने अगले 4 साल में खेलो इंडिया योजना के मार्फत 500 निजी जो एकेडमीज हैं उनको आर्थिक सहायता देने के लिए नए प्रोत्साहन ढांचे की घोषणा की है। किस तरह से ये जो 500 एकेडमीज हैं उनको चयनित किया जाएगा, क्या होगा मापदंड, किस तरह से इनका वर्गीकरण किया जाएगा, इन सभी मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी प्रीति। Thank you, Anchal. Yes, we welcome you to Atmanirbhar Bharat, and today we'll be talking of Atmanirbharta, we'll be talking of self-reliance in sports. Yes, the Sports Ministry has introduced an intensivization structure to extend monetary support to 500 private academies through the Khelo India scheme over the next 4 years. Now, in this model, private academies will be graded into different categories based on quality achievement of players trained by the academy. Along with this, the 14 priority disciplines identified for excellence in 2028 Olympics will be eligible for receiving support in the first phase. To talk more about it, we are joined in by guests in the studio, and how important will it be for the sports scenario in the country. We'll talk more about it. We're joined in by Mr. Ravikant Singh, he's sports analyst, and we're joined in by Mr. Deepak Kumar Dubey, he is shooting coach. Mr. Singh, when we talk of this move put forth by the Sports Ministry as part of Khelo India scheme, what went into launching of this incentivization of the private academies, and how important role do private academies play when we talk of nurturing the sporting talent in remote parts of the country? Thank you, and good morning all. It's a very great initiative by the government to hand out to the private academies the job of recruiting talent and spotting talent in the remote areas. Because let's not forget, we've been hearing this catch them young phrase and the slogan for almost 50 plus years, but the results haven't come. Now finally, with the scheme like the Khelo India, where there is a realistic goal to be achieved, there is a monetary incentive for the players to come and perform at the Khelo India Games, which will get them national recognition and selection. So getting the private academies involved is a wonderful step, because the government resources should not be stretched. They should be looked at for the training of the elite athletes. So let the private academies do the scouting and the spotting, and thereafter the government nurseries or the training centers can take over. And I think it's a very well thought out step. All right, Mr. Singh, also I want you to talk more about it. How would be the selection of the private academies be done? Because selecting 500 private academies all across the country is indeed not an easy task, is a Herculean task. I would want you to specify more details as to what would go into selection of the select private academies. Look, let's be very clear. The focus of the entire Khelo India Games is at the Olympics. So that rules out something like cricket, which is not an Olympic sport. Now we are left with Olympic sports, and of these, 14 have been identified as priority sports by the ministry, and that is where we excel. So we are not going after something like as outlandish as modern pentathlon or something. And we know what our strengths are. So if you're looking for boxing or wrestling talent, you will go to Haryana or the Northeast. You will not be looking at Gujarat. So that is how the regional divide will be utilized, because you know where the main pool of young talent exists. And from there you start looking at, so you'll have boxing academies in Haryana getting special attention, but those in the southern states get different games. Like Bengal will get obviously get a lot of football academies to look for talent. जी हमारे साथ दीपक कुमार दुबे साहब भी जुड़े हुए हैं, शूटिंग कोच है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में दीपक जी।
जिस तरह से हम जानते हैं, बिल्कुल धन्यवाद। जिस तरह से हम जानते हैं कि खेलों में प्रतिभाओं को निखारने के लिए जो एकेडमीज होती हैं उनका रोल, कोचेस का रोल काफ़ी अहम होता है, और जिस तरह से अब इन जो निजी एकेडमीज है, 500 निजी एकेडमीज है, उनको ये आर्थिक तोहफा दिया है खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना के तहत, कितना अहम आप मानते हैं उन खिलाड़ियों के लिए जो दूर दराज से हैं, सुदूर इलाकों से हैं? सबसे पहले मैं गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जो शूटिंग स्पोर्ट्स है वो बहुत कॉस्टली है, और इसके साथ ये पेरेंट्स के लिए भी भारी पड़ता है और इंडिविजुअल के लिए भी। जो खेलो इंडिया का स्कीम आया उसके तहत उन बच्चों को सिलेक्शन हुआ, और वो पेरेंट्स भी आगे आए, जिसके तहत उनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिला, और बच्चे जो है अपने जो उनका लक्ष्य है शूटिंग स्पोर्ट्स में आगे करना चाहते हैं, तो उसमें जो प्राइवेट एकेडमियाँ थीं उनको बहुत सहारा मिल गया, वो बच्चों तक पहुंच पाए और उनको सुविधाएं देना शुरू किया। और खेलो इंडिया आज की डेट में सबसे ज़्यादा शूटिंग में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। हर स्पोर्ट में होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम शूटिंग को देख रहे हैं, तो बहुत सारी हमारी एकेडमियाँ हैं जो प्राइवेट हैं, जो एनसीयूज को और इंडिया टीम को टक्कर देती हैं। हर एकेडमी का बच्चा जब नेशनल होता है, जब सिलेक्शन ट्रायल होता है, तो उसमें टॉप 8 में खड़ा होता है। तो इससे ये लगता है कि हर एकेडमी जो है वो मेहनत कर रही है और अपने बच्चों को अच्छा प्रोत्साहन कर रही है, और इसलिए ताकि वो खेलो इंडिया में सेलेक्ट हो सके, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। और ये बहुत ही सराहनीय पहल है गवर्नमेंट का, और मैं चाहता हूँ कि ये हर स्पोर्ट्स के तक पहुँचे, और जो गवर्नमेंट का 2028 का सपना है, तो उसके तहत हर एकेडमी जो है अपना बच्चा तैयार करे ओलंपिक के लिए। All right, Mr. Singh, we belong to a country where the countrymen eat, sleep, live cricket. So, in such a scenario, how crucial is it, or rather, how easy or difficult is it for other sports to survive? And when we talk of recognizing talent, finding and spotting talent across remote areas of the country, this specifically this intensivization of the private academies will play a crucial role, isn't it? Oh yes, without a doubt, because see, cricket is paying for itself. The cricket board does not look for government grants for survival or running its affairs. Unfortunately, that is not the case with other sports. Whether it is football or hockey, they are all looking at government grants. Now, how the government grants are utilized is not left alone to the federations. So when the government is paying the money, they have the right to look at how the money is being spent. And that's why they have decided to channelize it through the private academies, which are going to be spread all over the country. Now that makes the task of the government much easier, because the federations lack the infrastructure and the wherewithal to do something basic like checking of age when the sub-junior or the junior national championships are held. When the government steps in, obviously the infrastructure is far, far superior, and I've had the privilege of covering, being part of the television coverage for 2 Khelo India and 1 Khelo India University Games, and exactly that what happens. The doping control is robust, the age checking is very, very strict. So people who are taking part know that they have to go through a rigorous check before they make the grade. So when those kind of checks are in place, you have the real talent coming through, and a lot of talent is there available in the rural areas, in the remote areas. And once these academies start plucking them up, then we will have no dearth of talent in sports right across the board. रविकांत जी, पहले ये कहा जाता था कि आप अगर पढ़ते हैं, लिखते हैं तो आप नवाब बनते हैं, और खेलते हैं तो आप खराब बनते हैं। लेकिन अब इस पूरे कथन को जो है वो बदल दिया गया है, क्योंकि कहा जाता है कि जब इंडिया खेलेगा तभी वो खेलेगा। ऐसे में एनएसएफ का और ख़ास तौर पर हम बात करें एसएफआई का इस योजना के अंतर्गत साथ काम करना, और कैसे इन जो ये अकेडमीज़ हैं उनका चयन किया जाएगा, कौन कौन से वो मापदंड होंगे जिसमें उसका वर्गीकरण किया जाएगा, कितना अहम आप मानते हैं?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया थी, उसकी ये जिम्मेदारी हुआ करती थी कि जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए गए। लेकिन पिछले करीब 1.5-2 दशक से ऐसा हो रहा है कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया अकेले ही क्यों, बाकी फेडरेशंस भी जो एज ग्रुप टूर्नामेंट्स हैं, जो एज ग्रुप चैंपियनशिप्स हैं, उनको सही ढंग से ऑर्गेनाइज करने में सक्षम नहीं हो पा रही है। तो जाहिर है कि आपके पास जो जेन्युइन टैलेंट है वो उभर कर नहीं आ रहा है। इसी कारण से जो जिम्मेदारी अभी दी गई है भारत सरकार ने खेल प्राधिकरण को, उससे ये पता चल रहा है कि अब कितनी गंभीरता से इस मुद्दे को ले रही है सरकार, और जो एकेडमीज का चयन होगा वो उनके जो जिन खेलों में इन्वॉल्व हैं उसके आधार पर होगा। हॉकी आप पंजाब में, उत्तर पूर्व में देखेंगे, लेकिन आप गुजरात या आंध्रा में बहुत कम टैलेंट आपको मिलेगा। लेकिन कूर्ग इलाके में कर्नाटका के आपके पास हॉकी टैलेंट की भरमार है। तो ये एकेडमीज जो एरिया स्पेसिफिक हैं, जहां पे इस तरह का टैलेंट अवेलेबल है, उसको आपको टैप करना है और इसी की जरूरत है। जहां तक आपने क्रिकेट की बात की, क्रिकेट देखिए, क्रिकेट एक खेल है जिसमें करियर बनाना भी उतना आसान नहीं है। खेलों में करियर बनाना ये एक नया एवेन्यू अब युवाओं के सामने आ गया है कि आप खेल में भी इन्वॉल्व होकर अपना करियर बना सकते हैं। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि एक खिलाड़ी जिसको मॉनेटरी सपोर्ट मिलेगा 14 या 16 साल की उम्र से, वो फिर खेलों पे कंसंट्रेट कर सकता है पूरी तरह से। तो इस तरह से एक पिरामिड आपका तैयार होगा, बड़ा बेस लेकर, जिससे कि आप जो ट्रू चैंपियंस हैं उनको ढूंढ निकाल सकते हैं। All right, sir. Having said that, now providing monetary help to the children young at age would definitely ignite their interest in sports. But then, what next from here on? Because providing financial assistance is one part of the of fulfilling of the aim of the target. But once all right, once when the talent has been spotted, or when the interest, the passion has been ignited in the child, taking that forward on the national level, that also is indeed a big, tough journey, as we may call it. What is your take on that? Because when we talk of taking forward, prospective sports persons onto the national level, one comes across a number of discrepancies, number of loopholes in the selection procedure. What is your take on that? See, in a vast country like ours, with as huge a population like we have in India, it is always going to be a matter of debate. And I know everyone with an opinion will have a different list of who should make the grade Yes. at the national level. But the important thing is that having a pyramid base solid, and that's where the role of the private academies come. Because one thing that the sports ministry has made it clear is that the selection and the continuance of the financial assistance to academies will be performance based. So they have to provide a quality pool of talent to maintain that financial support that they will get. Now, if they are not able to do that, obviously they'll stand to lose money. Now, once that pool of talent is identified, the basic problem that Indian sports persons face is a lack of infrastructure. Now, a person working or affiliated to an academy has those basic training facilities to try and move up a few notches. And that's when the national federations have to step in and start picking up talent from these areas. I mean, let's not forget that, it is from one of such initiatives, under a very different name, of course. You had archers like Limba Ram coming through. I mean, these were talents which were, hidden from common sight, but they did come up, they performed at certain levels, but obviously we are looking to go much, much higher than that. We are looking at Olympic medals. The journey will not be easy, without a doubt, but if we never start, we'll never make it. Yes.
दीपक जी, कहा जाता है कि खिलाड़ी बनते नहीं हैं, उनको बनाना पड़ता है, और उनको बनाने के लिए संसाधनों के साथ साथ अगर हम कोचेस के रोल की भी बात करें, साथ ही साथ उच्च गुणवत्ता वाले तमाम संसाधन मौजूद होना काफ़ी अहम है, क्योंकि कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिस तरह से आपने बताया जो काफ़ी महंगे हैं। किस तरह से आप मानते हैं जिन जब आगे जाकर इन 500 एकेडमीज़ का सिलेक्शन किया जाएगा और उन्हें ये आर्थिक तोहफा दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो खिलाड़ी जो शायद पैसे के अभाव में नहीं खेल पा रहे थे, या वो कोच जो आगे नहीं कोचिंग कर पा रहे थे, उनके लिए काफ़ी एक वरदान? यस मैम, बहुत सही बात है ये। और क्योंकि गवर्नमेंट ने ना ओनली उन्होंने बच्चों को फाइनेंस सपोर्ट किया है, बल्कि कोचों के लिए भी प्रोग्राम किया हुआ है। जैसे पिछले लॉकडाउन में उन्होंने कोचिंग अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया, और स्पोर्ट्स साइंस की क्लासेस चलवाईं, और उनके बाकायदा एग्ज़ाम भी लिए गए। तो ऐसा नहीं है कि ओनली खिलाड़ियों के लिए सपोर्ट किया गया, बल्कि कोचों को भी अपडेट किया गया है, स्पेशली इन शूटिंग में। और शुरुआत कैसे हुई, जैसे हम लोग खुद इंडिया के लिए खेलते थे, उसके बाद में फिर उन्होंने जूनियर प्रोग्राम बनाया। जूनियर प्रोग्राम में जो अच्छे खिलाड़ी रहे हैं उनको एज ए कोच उन्होंने नियुक्त किया, और उसका नतीजा यही रहा कि जैसे हम लोग जो चीज़ों के अभाव था वो हम आने वाले शूटर के ऊपर नहीं आने दिए, और रिजल्ट ये आया कि हम लगातार पिछले 10 साल से वर्ल्ड में नंबर 1 पे आ रहे हैं एज ए जूनियर एंड एज ए सीनियर। तो नॉट ओनली खेलो इंडिया आपको खिलाड़ियों के लिए सपोर्ट कर रही है, बल्कि कोचों के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही है कि अगर एकेडमी में अगर आप अच्छी कोचिंग, अच्छा कोच रहेगा, तभी उसका रिजल्ट आएगा। तो उसको अपने आप आज की जो ट्रेनिंग अपडेट्स हैं, उसके पास जो भी ऐड है, और खुद को अपडेट करेगा, तभी वो इस कंपटीशन में आ पाएगा। और ऐसा नहीं है कि हर एकेडमी का खेलो इंडिया में चयन हो जाएगा। जो एकेडमी फुलफिल करके नॉर्म्स जो है खेलो इंडिया के, जैसे उसके पास एक्स्ट्रा कोचेज हों, फिजियोथेरेपिस्ट हों, और फर्स्ट एड की सुविधा हो, जिसमें मेल फीमेल कोच हो, सो दैट बच्चों को कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी असुविधा ना हो। तो ये कोचों को अपडेट करना प्लस खिलाड़ियों को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, ये जो स्कीम है इसके तहत, और प्लस टॉप्स की जो स्कीम है, इससे जो लड़के और आगे बढ़ जाते हैं और टारगेट ओलंपिक पोडियम में सिलेक्शन होता है, तो उनके कोचों को भी जो है फाइनेंशियली सपोर्ट गवर्नमेंट कर रही है। All right. At present, we also tell our viewers that in a short while from now, the Prime Minister will be inaugurating the Statue of Peace through video conferencing. And let's talk more about the Statue of Peace. The inauguration of this Statue of Peace is to mark the 151st birth anniversary of Jain monk Acharya Shri Vijay Vallabh Sureshwar Ji Maharaj. And to talk more about it, our correspondent Arun will be joining us in a while from now. But at present, we will thank Mr. Ravikant Singh for joining us and sharing his insights on Atmanirbhar Bharat, wherein we were talking of how the Sports Ministry has decided to give incentives to 500 private academies across the country to nurture and further enhance the talent of the sports person in the most remote areas of the country. All right, from here we go across to our correspondent Arun. Arun, when we talk of Prime Minister's program of unveiling the Statue of Peace to mark the 151st birth anniversary of Shri Vijay Vallabh Sureshwar Ji Maharaj, tell us more about it, and also acquaint our viewers with the legacy of the Jain monk. Good afternoon, Preeti. Now, it's an important day for a lot of Jain people all across the country and, of course, the world as well. We know this fact that Sureshwar Ji Maharaj is a prominent Jain monk, Jain Acharya, who played an important role as far as the propagation of the ideologies, the lessons of Mahavir Swamiji. Important aspect is also that, Preeti, that when we talk about Sureshwar Ji Maharaj, he also played an important role as far as Swadeshi Apnao movement is concerned. That means when today we are talking about Make in India initiative, it was Sureshwar Ji Maharaj in 1800s and 1900s. We have seen that how he played an important role as far as Swadeshi Apnao movement is concerned. That means how can Make in India initiative at that time can be adopted. So this was a strong message was given by him, and he played an important role. He also played an important role as far as uplifting the social life of many people. More than 50 institutions
institutions, primarily education institutions today in various states are there. And now it is because of his motivation, it is because of his inspiration that these 50 institutions, close to 50 institutions are there in various states. So today, Prime Minister Narendra Modi will be inaugurating this 151-inch, that means close to 12 feet to 12 and a half feet of the statue of जी Janacharya Vijay Vallabh Sureshwar ji, and which is of Ashtadhatu in nature. That means there are close to 8 metals. Primarily, copper is the main element in this statue. Now, this जी will play an important role in bringing or attracting tourists as well in Pali and of course जी in Rajasthan. अरुण, अगर हम जैन समुदाय की बात करें तो निस्वार्थ और समर्पण भाव के लिए जैन समुदाय जाना जाता है और इसीलिए जो श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज थे, अगर उनके व्यक्तिगत जीवन की भी बात की जाए तो किस तरह से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात की जाए, समर्पण भाव की बात की जाए, सद्भाव की बात की जाए, उसको लेकर बहुत कार्य किए हैं और ये कहीं ना कहीं प्रतीक है जो स्टैचू ऑफ पीस, इसका अनावरण आज प्रधानमंत्री करेंगे। बिल्कुल, स्टैच्यू ऑफ पीस का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। और जैसे कि जैनों के अंदर एक बात कही जाती है, जो महावीर स्वामी जो है उन्होंने काफी, जहाँ तक जैनों की बात की जाए, उन्होंने शांति की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो तमाम जीवात्माएं होती हैं वो एक समान होती है और आपको स्थित प्रज्ञ की तरफ होने की दिशा के अंदर जैन धर्मों में कहा गया। यानी कि महावीर स्वामी की अगर बात करें तो उन्होंने कहा था कि कैसे आप स्थित प्रज्ञ हो सके, यानी कि आप सुख में ज्यादा खुश ना हो, जब दुख आप पर आए, संकट आप पर आए तो आप दुखी ना हो, तो आप स्थित प्रज्ञ कैसे रह सके। वही अगर आचार्य सुरेश्वर जी महाराज की अगर बात की जाए तो उस मैसेज को वो आगे लेकर के गए हैं, नंबर 1। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो सोशल स्टेटा होता है किसी भी समाज का, तो उसमें एक तरह से इक्वलिटी आ सके, कैसे समाज के अंदर एकता रह सके, सौहार्दपूर्ण भावनाएं लोगों के अंदर रह सके और साथ ही साथ कैसे अब शांति के साथ, एकता के साथ रह सके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर इसकी लार्जर पिक्चर को समझने की कोशिश करें आंचल, तो वो ये है कि राजस्थान हम जानते हैं टूरिज्म पोटेंशियल रखता है ये राज्य। कुछ लगभग 2 महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक गेट का निर्माण किया, जो गेट का उद्घाटन किया था प्राइमरीली जयपुर के अंदर, उसे गेटवे ऑफ राजस्थान का भी, गेटवे ऑफ जयपुर का नाम भी दिया जा रहा है। तो उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस इस बात पर है कि जैसे उन्होंने पत्रिका गेट का उद्घाटन किया था अभी 2 महीने पहले लगभग, तो उससे टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि हम टूरिज्म के लिहाज से बात करें तो राजस्थान बहुत प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन के तौर पर देखा जाता है और जो दुनिया भर के अंदर जैनी लोग जो रहते हैं, जो जैन समाज को फॉलो करते हैं, जैन धर्म को फॉलो करते हैं प्राइमरीली, तो इंडिया के अंदर खास करके गुजरात में चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए, तो जैन धर्म फॉलो करने वाले बहुत से लोग होते हैं, दुनिया भर के अंदर भी लोग रह रहे हैं। तो ऐसे में जब वो भारत में आएंगे और जब ये 151 इंच की जो प्रतिमा जो वहां पर देखेंगे, वहां पर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बनता हुआ दिखाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आंचल यहाँ पर ये आ जाती है कि जो यंगस्टर्स है प्राइमरीली, वो अपनी जो हिस्ट्री को समझ पाएंगे। क्योंकि आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी की अगर बात की जाए तो उनकी आइडियोलॉजीज को, वो जो सोचते थे, क्योंकि काफी लोग वो एक तरह से गुरु के रूप में उनको पूछते हैं और एक वो गुरु के तौर पर उनकी क्या कुछ भूमिका रही है, क्या कुछ उनके लाइफ को लेकर के लेसन्स थे, जो मोटिवेशन की जरूरत होती है यंगस्टर्स को, वो उनके जो कई सारे थॉट्स थे, आइडियोलॉजीज थी, जो महावीर स्वामी जी ने भी कही थी, उनको जो उन्होंने प्रोपगेट किया था, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज की तारीख में बहुत जरूरी होता है कि कोई भी पुरुष स्थित प्रज्ञ होकर के रह सके, सुख में ज्यादा हर्षोल्लास ना हो, दुख में ज्यादा एक तरह से बहुत दुखी ना हो जाए, स्थित प्रज्ञ कैसे रह सके, तमाम जीवात्माओं को कैसे वो एक समान ट्रीट कर सके। आज जो समाज में, हाँ बिल्कुल, तो समाज और वही जैसे हम जानते हैं कि संत समाज जो होता है, अगर हम आज जिनकी भी बात करें तो कहीं ना कहीं सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए जड़ से उन लोगों का रोल काफी अहम हो जाता है। भले ही काम उन्होंने काफी साल पहले किया हो, लेकिन आज के युवाओं के लिए, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए जो ये संदेश है वो अपने आप में काफी सशक्त होता हुआ, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री कहते हैं कि युवाओं को अपनी जो रूट्स हैं वो नहीं भूलनी चाहिए और जो रूट्स है वो हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में है। बिल्कुल, और ऐसा कहा भी जाता है कि वन हु फॉरगेट्स हिज हिस्ट्री कैन नेवर क्रिएट हिज ओन हिस्ट्री। तो यानी कि जो अपने इतिहास को भूल जाता है वो कभी भी एक नया इतिहास नहीं बना सकता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पर अगर फोकस करे, अगर उनके पैटर्न को समझ। All right, Arun, we'll interrupt you here. In a while from now, we will see the program beginning, wherein Prime Minister, through video conferencing, will be inaugurating the Statue of Peace in Rajasthan.
वंदामि मथेन धर्म वंदामि। लाभ आशा आशीर्वाद करता हूं कि आप सभी सुख सातापूर्वक होंगे। देव गुरु पसाए, देव गुरु पसाए। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, समाज सुधारक एवं क्रांतिकारी पंजाब केसरी युग दृष्टा जैनाचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सूरी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उनके उत्तराधिकारी वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सूरी महाराज साहब आदि गुरु भगवान और साध्वी महाराज साहब को मेरा सादर नमन। हमारी विनंती को सम्मान देते हुए आज इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी एवं गुरु वल्लभ के 151 पावन जन्मदिन पर उपस्थित आप सबका मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं। श्री गुरु वल्लभ जैन धर्म के महान प्रभावक समयदर्शी आचार्य थे। वह संस्कृति और शिक्षा के जैन धर्म में महान प्रभावक थे। श्री गुरु वल्लभ जैनों की नहीं बल्कि अपने लोक कल्याण के कार्यों से जन जन के हृदय वल्लभ में बन गए। उनको अनेक गुरुकुल और विद्यालयों की स्थापना के लिए प्रेरणा की। उनसे एक प्रमुख संस्था श्री महावीर जैन विद्यालय, जिसकी स्थापना आज से 105 पूर्व सन 1915 में हुई। इसी विद्यालय में मुंबई शाखा में रहकर मेरे पूज्य पिताश्री ने अभ्यास किया। गुरुदेव के हमारे परिवार पर इस उपकार को ध्यान में रखते हुए हमारे परिवार ने अहमदाबाद में विद्यालय का नवनिर्माण करवाया, जिसका लोकार्पण हाल में ही 5 जनवरी 2020 को गच्छाधिपति श्री नित्यानंद सूरी महाराज साहब की निश्रा में और गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी के हस्तक हुआ। गुरुदेव के हमारे परिवार का इस उपकार को ध्यान में रखते हुए मैं सब गुरु वल्लभ की कृपा समझता हूँ। ऐसे ही गुरु वल्लभ की 151वीं जयंती में शुभ अवसर के ऊपर 51 इंच ऊंची धातु प्रतिमा की स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का द्वारा अपना कीमती समय निकालकर आज इसी कार्यक्रम में पधारने के उपकार के लिए सकल जैन समाज उनको प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे देश का सौभाग्य है कि हमें राष्ट्रप्रेमी और अपनी संस्कृति के उजागर करने वाले प्रधानमंत्री मिले हैं, जिन्होंने महापुरुष का इतिहास पढ़ा भी है और अपने जीवन में आत्मसात भी किया है, और उन्होंने महापुरुष के दिखाए विकास पथ पर भारतवर्ष को आगे बढ़ाया है।
और हमारी परंपराओं और समृद्ध मूल्यों की गति दी है। ऐसे प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में हमारा कार्यक्रम को प्रोत्साहन और गरिमा प्राप्त हुआ है। मैं फिर से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और मेरी बात को विराम करता हूं। जय हिंद। ये थे श्रीमान सुधीर भाई और अब परम पूज्य गच्छाधिपति शांतिदूत आचार्य भगवंत पूज्य नित्यानंद श्री श्रुति महाराज साहेब हम सभी को अपनी देशना फरमा रहे थे। भारत देश में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय दृढ़ निश्चयी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, गुरु वल्लभ सार्ध जन्म शताब्दी महोत्सव महासमिति के चेयरमैन श्री सुधीर भाई, अखिल भारतीय आत्मवल्लभ जैन महासंघ के प्रेसिडेंट श्री राजकुमार जी ओसवाल, श्री आत्मवल्लभ समुद्र फाउंडेशन जेतपुरा के अध्यक्ष श्री गिसुराज जी सुराना तथा सभी श्रद्धालुगण, आज देश तथा दुनिया में बसे हुए सकल जैन समाज के लिए बड़े ही ऐतिहासिक गौरवपूर्ण क्षण है। हमारे ऊर्जावान प्रधानमंत्री जैनों के ही नहीं जन जन के वल्लभ जगत वल्लभ गुरु वल्लभ के 151वें पावन जन्म दिवस के अवसर पर उन्हीं की 151 इंच की भव्य प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। गुरु वल्लभ जैसे महान संत शताब्दियों में ही अवतरित होते हैं। 20वीं सदी में धार्मिक मर्यादाओं का पालन करते हुए उन्होंने समाज तथा राष्ट्र की उन्नति के लिए, सर्वोदयी विकास के लिए इतने कार्य किए जिनका पुण्य फल हमें कई शताब्दियों तक मिलता रहेगा। क्षमा श्रवण भगवान महावीर की पाठ परंपरा के 74वें पट्टधर गुरु वल्लभ की यह भव्य प्रतिमा उनके विश्व शांति, अहिंसा, समन्वय और सद्भावना की उदात्त भावना का प्रतीक बनेगी। युग दृष्टा, युग सृष्टा गुरु वल्लभ का मुंबई महानगरी में 67 वर्ष पूर्व देवलोक गमन हुआ था। तब प्रत्येक धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग, वर्ण के लाखों लोगों ने उन्हें अश्रुभीनी अंतिम विदाई दी थी। अगले दिन विराट गुणानुवाद सभा में मुंबई की तत्कालीन मेयर श्री गणपति शंकर देसाई ने अध्यक्षीय भाषण में श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए रूंधे कंठ से कहा था, हमारे देश में दो वल्लभ हुए, एक राजनीतिक क्षेत्र में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने खंड खंड हुए भारत को अखंड स्वरूप प्रदान करने में अहम भूमिका अदा की, अखंड भारत के कुशल शिल्पी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और दूसरे धार्मिक क्षेत्र में जैन आचार्य विजय वल्लभ सरस्वती महाराज, जिन्होंने साधु जीवन की मर्यादाओं का पालन करते हुए देश के कोने कोने में अंतिम श्वास तक पद विहार करते हुए अशिक्षा के सघन अंधकार को दूर करने के लिए सैकड़ों शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की, समाज सुधार के कार्य करते हुए लोगों को कुरूढ़ियों की कारा से मुक्ति दिलाई तथा निर्व्यसनी समाज रचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा का स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री के करकमलों से संपन्न हुआ था, और आज
जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण भी प्रधानमंत्री जी के ही करकमलों से संपन्न होने जा रहा है। एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी को उनके कुशल नेतृत्व में भारत देश के बहुमुखी विकास में सदा सफलता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते रहे, सबको आगे ले जाते रहे। इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, उनके तपोमय संत स्वरूप जीवन की आत्मिक अनुमोदना, हृदय से आशीर्वाद। अंत में 1 मिनट के लिए पवित्र मंत्रोच्चार एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप सब साथ बोलेंगे। ओम पुण्याहम पुण्याहम प्रियंताम प्रियंताम भगवन्तो अर्हन्तः ओम पुण्याहम पुण्याहम प्रियंताम प्रियंताम भगवन्तो अर्हन्तः शिवमस्तु सर्वजगतः परिहित निर्मः भवन्तु सुखतमः दोषः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और अब भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी के कर कमलों से विश्व में एकमात्र 151 इंची जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा की प्रतिमा का अनावरण किया जाए। जय बोलो विजय वल्लभ सुरी महाराज की जय। तालियां बजाएं सब। पंजाब केसरी जी की प्रतिमा जी का अनावरण हो चुका है। जय जयकार जय जयकार गुरु वल्लभ की जय जयकार। विजय वल्लभ सुरी जी महाराज की जय। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी से विनंती करता हूं, निवेदन करता हूं कि वे राष्ट्र को संबोधित करें। नमस्कार। कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित गच्छाधिपति जैनाचार्य श्री विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज,
आचार्य श्री विजय चिदानंद सूरी जी महाराज, आचार्य श्री जयानंद सूरी जी महाराज, महोत्सव के मार्गदर्शक मुनि श्री मोक्षानंद विजय जी, श्री अशोक जैन जी, श्रीमान सुधीर मेहता जी, श्री राजकुमार जी, श्री देसुलाल जी और आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरी जी के सभी साथी अनुयायियों, आप सभी को युगद्रष्टा, विश्व वंद्य विभूति, कलिकाल कल्पतरु, पंजाब केसरी आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरी जी के 150वें जन्म वर्ष महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूं। ये नववर्ष आध्यात्मिक आभा का वर्ष है, प्रेरणा देने वाला वर्ष है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस आयोजन में शामिल होने, आप सभी से आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है। जन्म वर्ष महोत्सव के माध्यम से जहां एक तरफ भगवान श्री महावीर स्वामी के अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों को प्रसारित किया जा रहा है, तो साथ ही गुरु वल्लभ के संदेशों को भी जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इन भव्य आयोजनों के लिए मैं गज्जाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज का भी विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। आपके दर्शन, आशीर्वाद और सानिध्य का सौभाग्य मुझे वडोदरा और छोटा उदयपुर के कवांट गांव में भी प्राप्त हुआ था। आज पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होने का अवसर मिला है, जिसे मैं अपना एक पुण्य मानता हूं। संतजन आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज कहा करते हैं कि गुजरात की धरती ने हमें 2 वल्लभ दिए, और अभी भी इस बात का जिक्र हुआ। राजनीतिक क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल और आध्यात्मिक क्षेत्र में जैनाचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज। वैसे मैं दोनों ही महापुरुषों में एक समानता और देखता हूं। दोनों ने ही भारत की एकता और भाईचारे के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मेरा सौभाग्य है कि मुझे देश ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लोकार्पण का अवसर दिया था, और आज जैनाचार्य विजय वल्लभ जी की स्टैच्यू ऑफ पीस के अनावरण का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। संतजन, भारत ने हमेशा पूरे विश्व को, मानवता को शांति, अहिंसा और बंधुत्व का मार्ग दिखाया है। ये वो संदेश है जिनकी प्रेरणा विश्व को भारत से मिलती है। इसी मार्गदर्शन के लिए दुनिया आज एक बार फिर भारत की ओर देख रही है। मुझे विश्वास है कि ये स्टैच्यू ऑफ पीस विश्व में शांति, अहिंसा और सेवा का एक प्रेरणा स्रोत बनेगी। साथियों,
आचार्य विजय वल्लभ जी वे कहते थे, धर्म कोई तटबंधों में बंधा सरोवर नहीं है, बल्कि एक बहती धारा है जो सबको समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। उनका ये संदेश पूरे विश्व के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। उनके जीवन का जो विस्तार रहा है, उसमें आवश्यक है कि उनके बारे में बार बार बात की जाए, उनके जीवन दर्शन को दोहराया जाए। वो एक दार्शनिक भी थे, समाज सुधारक भी थे, वो दूरदृष्टा भी थे और जनसेवक भी थे। वो तुलसीदास, आनंदधन और मीरा की तरह परमात्मा भक्त कवि भी थे और आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा भी थे। ऐसे में ये बहुत आवश्यक है कि उनका संदेश, उनकी शिक्षाएं और उनका जीवन हमारी नई पीढ़ी तक भी पहुंचे। साथियों, भारत का इतिहास आप देखें तो आप महसूस करेंगे, जब भी भारत को आंतरिक प्रकाश की जरूरत हुई है, संत परंपरा से कोई न कोई सूर्य उदय हुआ है। कोई न कोई बड़ा संत हर कालखंड में हमारे देश में रहा है, जिसने उस कालखंड को देखते हुए समाज को दिशा दी है। आचार्य विजय वल्लभ जी ऐसे ही संत थे। गुलामी के उस दौर में उन्होंने देश के गांव-गांव, नगर-नगर पैदल यात्राएं की, देश की अस्मिता को जगाने का भगीरथ प्रयत्न किया। आज जब हम आजादी के 75 साल की तरफ बढ़ रहे हैं, आजादी के आंदोलन के एक पहलू को तो दुनिया के सामने किसी न किसी रूप में हमने हमारे आंख कान की ओर से गुजरा है, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना होगा कि भारत के आजादी के आंदोलन की पीठिका भक्ति आंदोलन से हुई थी। जन जन को भक्ति आंदोलन के माध्यम से हिंदुस्तान के कोने कोने से संतों ने, महंतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने उस चेतना को जागृत किया था, एक पीठिका तैयार की थी और उस पीठिका ने बाद में आजादी के आंदोलन को बहुत बड़ी ताकत दी थी। और उस पूरी पीठिका को तैयार करने वाले में जो देश में अनेक संत थे, उसमें एक वल्लभ गुरु थे। गुरु वल्लभ का बहुत बड़ा योगदान था, जिसने आजादी के आंदोलन की पीठिका तय की थी। लेकिन आज 21वीं सदी में मैं आचार्यों से, संतों से, भगवंतों से, ऋषियों से, कथाकारों से एक आग्रह करना चाहता हूं। जिस प्रकार से आजादी के आंदोलन की पीठिका भक्ति आंदोलन से शुरू हुई, भक्ति आंदोलन ने एक ताकत दी, वैसे ही आत्मनिर्भर भारत की पीठिका तैयार करने का काम भी हमारे संतों, महंतों, आचार्यों का है। आप जहां भी जाएं, जहां भी बोले, अपने शिष्य हो या संत जन हो, आपके मुंह से लगातार ये संदेश देश के हर व्यक्ति तक पहुंचते रहना चाहिए। और वो संदेश है वोकल फॉर लोकल। जितना ज्यादा हमारे कथाकार, हमारे आचार्य, हमारे भगवंत, हमारे संतजन, उनकी तरफ से बात जितनी ज्यादा आएगी, जैसे उस समय
आजादी की पीठिका आप सभी आचार्यों संतों महंतों ने की थी, वैसी ही आजादी की पीठिका, आत्मनिर्भर भारत की पीठिका आप तैयार कर सकते हैं। और इसलिए मैं आज देश के सभी संतों महापुरुषों के चरणों में आग्रह पूर्वक निवेदन कर सकता हूं, प्रधान सेवक के रूप में निवेदन करता हूं कि आइए हम इसके लिए आगे बढ़े। कितने ही स्वतंत्र संग्राम सेनानी इन महापुरुषों से प्रेरणा लेते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय, मोरारजी भाई देसाई जैसे कितने ही जन नेता उनका मार्गदर्शन लेने उनके पास जाते थे। उन्होंने देश की आजादी के लिए भी स्वप्न देखा और आजाद भारत कैसा हो इसकी भी रूपरेखा खींची। स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के लिए उनका विशेष आग्रह था। उन्होंने आजीवन खादी पहनी, स्वदेशी को अपनाया और स्वदेशी का संकल्प भी दिलाया। संतों का विचार कैसे अमर और चिरंजीवी होते हैं, आचार्य विजय वल्लभ जी के प्रयास इसका साक्षात उदाहरण है। देश के लिए जो स्वप्न उन्होंने आजादी के पहले देखा था, वो विचार आज आत्मनिर्भर भारत अभियान के जरिए सिद्धि की तरफ बढ़ रहा है। साथियों, महापुरुषों का, संतों का विचार इसलिए अमर होता है क्योंकि वो जो कहते हैं, जो बताते हैं, वही अपने जीवन में जीते हैं। आचार्य विजय वल्लभ जी कहते थे, साधु महात्माओं का कर्तव्य केवल अपनी आत्मा के कल्याण करने में ही समाप्त नहीं होता। उनका यह भी कर्तव्य है कि वह अज्ञान, कलह, बेकारी, विषमता, अंधश्रद्धा, आलस, व्यसन और बुरे रीति रिवाज जिनसे समाज के हजारों लोग पीड़ित हो रहे हैं, उनके नाश के लिए सदा प्रयत्न करें। उनके इसी सामाजिक दर्शन से प्रेरित होकर आज उनकी परंपरा में कितने ही युवा समाज सेवा के लिए जुड़ रहे हैं, सेवा का संकल्प ले रहे हैं। संतजन, आप सब भी ये भली भांति जानते हैं कि सेवा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता से ये विषय आचार्य श्री के हृदय के सबसे करीब थे। गुलामी के कालखंड की तमाम चुनौतियां के बावजूद उन्होंने जगह जगह शिक्षा का प्रचार किया, गुरुकुलों, विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना की। उन्होंने आह्वान किया था, घर घर विद्या दीप जले, घर घर विद्या दीप जले। लेकिन वो ये बात भी समझते थे कि अंग्रेजों द्वारा बनाई शिक्षा व्यवस्था भारत की आजादी और प्रगति में मददगार नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने जिन विद्यालयों, महाविद्यालयों की स्थापना की, वहां शिक्षा को भारतीयता का कलेवर और भारतीय रंग दिया। जैसे महात्मा गांधी ने गुजरात विद्यापीठ का सपना देखा था, वैसा ही सपना गुरु वल्लभ ने देखा था। एक तरह से आचार्य विजय वल्लभ जी ने शिक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू किया था। उन्होंने पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में भारतीय संस्कारों वाले बहुत से शिक्षण संस्थाओं की आधारशिला रखी। आज उनके आशीर्वाद में अनेकों शिक्षण संस्थान देश में काम कर रहे हैं। साथियों, आचार्य जी के ये शिक्षण संस्थान आज एक उपवन की तरह है। ये भारतीय मूल्यों की पाठशाला बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। 100 सालों से अधिक की इस यात्रा में
कितने ही प्रतिभाशाली युवा इन संस्थानों से निकले हैं। कितने ही उद्योगपतियों, न्यायाधीशों, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ने इन संस्थानों से निकलकर देश के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया है। इन संस्थानों की एक और विशेष बात रही है स्त्री शिक्षा, नारी शिक्षा, त्रिशिक्षा के क्षेत्र में इन संस्थानों ने जो योगदान दिया है, देश आज उसका ऋणी है। उन्होंने उस कठिन समय में भी स्त्री शिक्षा की अलग जगाई, अनेक बालिकाश्रम स्थापित करवाए और महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ा। जैन साध्वियों से सभा में प्रवचन दिलाने की परंपरा विजय वल्लभ जी ने ही शुरू करवाई थी। उनके इस प्रयासों का संदेश यही था कि महिलाओं को समाज में, शिक्षा में बराबरी का ये दर्जा मिले। भेदभाव वाली सोच और प्रथाएं खत्म हो। आज आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि देश में इस दिशा में कितने सारे बदलाव हुए हैं। 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ देश ने कानून बनाया है। महिलाओं के लिए ऐसे सेक्टरों को भी खोला जा रहा है जहां अब तक उनके काम करने पर मनाही थी। अब देश की बेटियां को सेनाओं में अपना शौर्य दिखाने के लिए उनको भी ज्यादा विकल्प मिल रहा है। इसके साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब देश में लागू होने वाली है। ये नीति शिक्षा को भारतीय परिवेश में आधुनिक बनाने के साथ साथ महिलाओं के लिए भी नए अवसर तैयार करेगी। साथियों, आचार्य विजय वल्लभ जी कहते थे, राष्ट्र के कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं, अनुपालन करना चाहिए। वो अपने जीवन में भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के ही मंत्र को जीते थे। मानवता के इसी सत्य पर चलकर उन्होंने जाति, पंथ, संप्रदाय की सीमाओं से बाहर जाकर सबके विकास के लिए काम किया। उन्होंने समाज के सक्षम वर्ग को प्रेरित किया कि विकास के आखिरी पायदान पर रहने वाला आम जन की सेवा करें। जो बात महात्मा गांधी कहते थे, वो बात गुरु वल्लभ जी करके दिखाते थे। उन्हें गरीब से गरीब समाज के आखिरी व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उनकी इस प्रेरणा का प्रभाव आप, हम और आप देश भर में देख रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से देश के कई शहरों में गरीबों के लिए घर बने हैं, अस्पताल बने, उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए हैं। आज देश भर में आत्मवल्लभ नाम से कितनी संस्थाएं गरीब बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी उठा रही हैं। माताओं बहनों को जीवन यापन के लिए, निर्धन बीमार लोगों को इलाज के लिए सहायता कर रही हैं। साथियों, आचार्य विजय वल्लभ जी का जीवन हर जीव के लिए दया, करुणा, प्रेम से ओतप्रोत था। इसलिए उनके आशीर्वाद से आज जीव दया के लिए पक्षी हॉस्पिटल, अनेक गौशालाएं भी देश में चल रही है। और ये कोई सामान्य संस्थान नहीं है, ये भारत की भावना के अनुष्ठान है। ये भारत और भारतीय मूल्यों की पहचान है। साथियों, आज देश आचार्य विजय वल्लभ जी के उन्हीं मानवीय मूल्यों को मजबूत कर रहा है जिनके लिए उन्होंने खुद को समर्पित किया था। कोरोना महामारी का ये कठिन समय हमारे सेवा भाव, हमारी एकजुटता के लिए कसौटी की तरह था। लेकिन मुझे संतोष है
कि देश इस कसौटी पर खरा उतर रहा है। देश ने गरीब कल्याण की भावना को न केवल जीवित रखा, बल्कि दुनिया के सामने एक उदाहरण भी पेश किया है। साथियों, आचार्य विजय वल्लभ सूरी जी कहते थे, सभी प्राणियों की सेवा करना यही हर भारतवासी का धर्म है। आज उनके इसी वचन को हमें अपना मंत्र मानकर आगे बढ़ना है। हमें अपने हर प्रयास में ये सोचना है कि इससे देश को क्या लाभ होगा, देश के गरीब का कल्याण कैसे होगा। मैंने जैसे प्रारंभ में कहा, वोकल फॉर लोकल इसका एक बहुत बड़ा माध्यम है और इसका नेतृत्व संत जगत को उठाना ही होगा। संतों, महंतों और मुनियों ने इस मंत्र को आगे बढ़ाना ही होगा। इस बार दिवाली और सभी त्योहारों पर जिस तरह से देश ने लोकल इकोनॉमी को जमकर समर्थन किया, ये वाकई नई ऊर्जा देने वाला है। इस सोच को, इस प्रयास को हमें आगे भी बनाए रखना है। आइए आचार्य विजय वल्लभ जी की 150वीं जयंती पर हम सब संकल्प लें कि उन्होंने जो कार्य अपने जीवन में शुरू किए थे, उन सभी कार्यों को हम पूरी लगन के साथ, पूरे समर्पण के भाव के साथ उन सभी कामों को मिलजुल करके आगे बढ़ाएंगे। हम सभी मिलकर भारत को आर्थिक ही नहीं, वैचारिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। सभी आचार्य भगवंतों को मैं प्रणाम करते हुए, सभी साध्वी महाराज का भी मुझे यहां से दर्शन हो रहा है, उन सबको भी प्रणाम करते हुए आज इस पवित्र अवसर पर मुझे आप सबके बीच आने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है। मैं फिर एक बार सभी संतों, महंतों, आचार्यों को प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला, गुरु वल्लभ के गुणवादन किया और महापुरुष के प्रति अपना बहुमान पूर्वक वक्तव्य किया। उसके लिए मैं पूरे जैन समाज के ओर से आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय हिंद। That was the program we were getting for you, wherein Prime Minister unveiled the Statue of Peace, which was to mark the 151st birth anniversary of Jain monk Acharya Shri Vijay Vallabh Sureshwarji Maharaj, and that was the program was being held in Rajasthan, and the Prime Minister inaugurated and unveiled the statue through video conference. In his address, the Prime Minister talked of how this year is marking the 151st anniversary, and that is about devotion and inspiration. He talked of how we have two Vallabhs of the country which have made the country proud, Sardar Vallabhbhai Patel and Shri Vijay Vallabh Sureshwarji Maharaj, and both of them helped in unifying the country. Statue of Unity and Statue of Peace, he compared both of them, and he also talked of values of peace, brotherhood, which are inspired by India in the world, and the world looks towards India for these. It also said the state of peace will be provided, and inspiration of peace and unity in the world is what India stands for. He talking of
of Sureshwar Ji Maharaj. He talked of, he was a saint who held marches in different parts of the country on foot during the pre-independence era, and how he ignited the thought of freedom through Bhakti Andolan. And through this, the Prime Minister urged the saints to propagate vocal for local and make Atmanirbhar Bharat a success story. He also said the role of saints should also help in eradicating poverty and other social problems and challenges. And also Acharya Sureshwar Ji Maharaj propagated Ghar Ghar Vidya Deep Jale and established educational institutions all across the country. And he also attempted to make India self-reliant or Atmanirbhar in education. And he also talked of how he also voiced for equality of women and bringing them into the mainstream. बिल्कुल, और किस तरह से मानव सेवा को परम धर्म मानकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा। और साफ तौर पर कहा कि आंतरिक प्रकाश की जब जरूरत होती है तो कोई ना कोई संत हर युग में आता है, और इसी से ही समाज की जो दशा है और जो दिशा है वो बदलती है। और किस तरह से मार्गदर्शन पर आज का युवा भी चलेगा, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। और किस तरह से संत समाज ने आत्मनिर्भरता की एक लौ जगाई है, जिसके जरिए हमें आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़ना है। तो आज आत्मनिर्भर भारत में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।